Namaskar, welcome to Avigna Solution YouTube channel. I, on behalf of Avigna Corporate Solutions, welcome you to today's training program, which is on Central KYC Training Program Part 1. We always want to know, yes, as per the RBI Master Direction on KYC, which is on 2016 and now amendment in the month of December 23, focus on one part which is now today we are discussing, that central KYC, central know your customer registry. The RBI had come up this concept way back, and now they have said if you onboarding the customers or your NBFC's customer interface, then you have to report the data of the customer on this CKYC portal. So there is one additional compliance apart from all the filing or like the NBFC reporting the credit information to all the CICs. So this is the similar for the KYC document or KYC information of the customer should be reported to the central KYC. The RBI preparing this registry to know to mitigate the fraud which is likely to be happen with respect to the customer KYC document, more particular their mobile number, email ID and their current address. So today we just see how do we deal with this CKYC registry. Now come to this CKYC registry, I say that as per the direction of Ministry of Finance, Central Registry. So this CERSAI is the authority to perform the function of Central KYC Record Registry CKYCR. The CERSAI will receive, store, safeguard and retrieve the data. As not only the uploading, you get the data from them. So as a in the process of the customer onboarding, many NBFC are depend on the CKYC's data as well. So this is very crucial as also. So now in the para 56 of master direction on know your customer direction updated on May 21, it is also prescribed the important and the compliance of all the NBFCs including housing finance company to comply with the CKYC norm. CKYC was first announcement by the budget in 12-13, that is the budget in, and now the live in 2016. CKYC managed by that all the CKYC number after generation you get a 14-digit CKYC number that is called the KIN number, and it is linked to your ID which is the passport or PAN card and your date of birth. You can download the record. Now here is the one question is came. What is the flow? How I get the compliance? I just touch this in this upcoming video is on the later slide. एक बेसिक चीज आप ये जाने, आरबीआई ने कहा कि जब कोई बार कस्टमर इंटरफेरेंस है तो आपको CKYC करना है। CKYC इसके लिए नहीं करना है कि कस्टमर का मैंने जो आधार कार्ड पैन कार्ड लिया, आइदर मैंने फिजिकली लिया OSV करके ओरिजिनल सीन एंड वेरीफाई, या मैंने डिजी लॉकर से डाउनलोड किया, या मैं CKYC पोर्टल से भी मैंने डाउनलोड किया, बट उसका करंट एड्रेस क्या है? क्या जो NBFCs ने करंट एड्रेस जो कि CKYC मास्टर डायरेक्शन में पॉजिटिव वेरिफिकेशन, अगर आपने पॉजिटिव वेरिफिकेशन अपने कस्टमर का किया फॉर द करंट एड्रेस, क्या वो करंट एड्रेस CKYC के रिकॉर्ड में जो एड्रेस है जो डेटा उसे मैच कर रहा है कि नहीं? अगर वो उसे मैच नहीं कर रहा है तो इट इज अ लायबिलिटी, इट इज मैंडेटरी फॉर NBFC टू अपडेट द रिकॉर्ड which is already existing in CKYC registry to match with the current address. So just give you the example. Suppose I am a customer, I have my own CKYC number or NBFC. I just go to XYZ bank or XYZ housing finance company or NBFCs. They take my PAN card and my date of birth, pull the data from CKYC portal. They say, okay, now you are onboarded. And they say, please let me know what is your current address. I provide my current address XYZ. Now the duty under the master direction of the KYC under the regulation of CKYCR, you as the NBFCs have to match my data which they have downloaded
from CKYC portal and the information which I have provided in the journey of onboarding as a customer. If there is any change, if my current address, my mobile number, my email ID or my marital status or anything has been changed, then it is a mandatory duty to report this change to CKYC. That is called the update, the CKYC. So many NBFC was say, no boss, I have, we are doing a digital KYC. We have downloaded record from CKYC only. Then how should I upload? No, you have to update it. And it is your duty. So you come. There are a lot of RBI press release where the RBI imposed penalty due to non-compliance of RBI KYC direction related to CKYC only. So this is the CKYC portal with the maker application. Now there is a two portal. Many times say I receive call कि मेरे पास तो यूजर आईडी पासवर्ड है बट वो रिकॉर्ड कैसे अपलोड करना है, या वो मेरे का टेस्टबेट का है मैं तो रिकॉर्ड अपलोड कर रहा हूँ. There is two portal. There is two portal of CKYC. One is testbed they call, means you call the UAT, and that another is a live portal. टेस्टबेट पोर्टल इसलिए बनाया है आरबीआई ने या इसलिए बनाया है सरसाई डिपार्टमेंट ने कि आप एक केवाईसी के साथ केवाईसी कैसे अपलोड करनी है, ये पोर्टल कैसे फंक्शन करता है, इससे आप फेमिलियर हो जाओ. क्योंकि ये कस्टमर का कोर डेटा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए. इसके लिए उन्होंने टेस्टबेट बनाया. तो सबसे पहले अगर आज आप नए हो, आपने CKYC में अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आप testbed.ckycindia.in पे आप जाइए, वहां पे एप्लीकेशन करिए, दैट इज कॉलम का रजिस्टर, आप रजिस्टर करिए, वहां पे डिटेल भरिए. अब मेक श्योर जो डिटेल आप वहां भर रहे हो, एडमिन 1 एडमिन 2, प्लीज मेक श्योर 90% डेटा शुड बी ऑन द लाइव पोर्टल पे भी वही आप डालिए, क्योंकि वहां पे कुछ गलती होगा तो आपको पता चल जाएगा. बट अगर मैं लाइव पोर्टल पे गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को चेंज कराने के लिए. तो सबसे पहले काम आप टेस्टबेट पर रजिस्ट्रेशन कराइए, सेम टाइम आप CKYC पोर्टल पे भी रजिस्टर कराइए. टेस्टबेट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद देयर इज ऑप्शन आपको फाइनल पोर्टल का, ये जो फाइनल पोर्टल है CKYC इंडिया, इसका यूजर आईडी क्रेडेंशियल तभी मिलेगा जब आप टेस्टबेट के सारे स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड द टेस्टबेट चेकलिस्ट, आप कंप्लीट करोगे. उसके बाद आप सारे डॉक्यूमेंट दिल्ली CKYC ऑफिस में आप सबमिट करोगे थ्रू रजिस्टर पोस्ट. उसके बाद ही आपको लाइव पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये पोर्टल दो एडमिन से होता है, एडमिन 1 और एडमिन 2. एक होता है चेकर, दूसरा होता है मेकर, और हमेशा ये पोर्टल डिजिटल सिग्नेचर से ही लॉगिन होता है. आपको आईडी दिया जाएगा, पासवर्ड दिया जाएगा, बट जब तक आप डिजिटल सिग्नेचर से इसको ऑथेंटिकेट नहीं करोगे ये पोर्टल फंक्शन नहीं करेगा. नाउ अभी सपोज मैंने कर लिया, मैंने टेस्टबेट पे गया. अगर आप यहाँ पे लिंक भी देखेंगे testbed.ckyc.india है, ये होम पेज है. मैंने आईडी पासवर्ड अपना आईडी डाला, अपना पासवर्ड डाला, अपना डिजिटल सिग्नेचर करके मैंने कर दिया. ये मेरा होम पेज है टेस्टबेट का. मैंने टेस्टबेट सबसे पहला काम, जिस तरह से आपने लॉगिन कर लिया, इफ यू लॉगिन ऑन द पोर्टल व्हाट यू डू द नेक्स्ट. यहाँ पे बहुत सारे टैब हमको समझ में नहीं आए भाई, पहली बार देख रहे. आरबीआई तो आई ऑलवेज डोंट नो, आरबीआई पोर्टल कोई भी ला देता है, बस उसके लिए कोई ट्रेनिंग वीडियोज नहीं होते, उसके लिए कोई सेमिनार ही नहीं होता है. आई डोंट नो, बड़े बड़े एनबीएफसीज का वो करते होंगे, बट जितने मैंने एनबीएफसीज देखी हैं, जितने मैंने हाउसिंग फाइनेंस देखी हैं, कोई उस पर ट्रेनिंग वीडियोज आरबीआई की तरफ से नहीं रहता है. नेक्स्ट पार्ट पे क्या कहते हैं, पोर्टल लॉगिन होने के बाद जस्ट क्लिक ऑन बिलिंग मैनेजमेंट. बिलिंग मैनेजमेंट पे क्लिक करके जीएसटी नंबर डिटेल, ये सब टेस्टबेट क्या है, फेक है. फेक इन से रिपब्लिक का है. आपका मेन पोर्टल जैसे फंक्शन करता है सेम उसी फंक्शन ये करता है. इसको इसीलिए हम यूएटी बोलते हैं, टेस्टिंग इन्वायरमेंट. आप यहाँ पे टेस्ट करते हो, आप यहाँ पे जीएसटी नंबर सबसे पहला ऑप्शन, आप यहाँ पे जीएसटी डिटेल है, आप क्लिक ऑन फिल द जीएसटी. अगर आपकी कंपनी को जीएसटी अप्लीकेबल है तो आप जीएसटी की डिटेल डालिए. अगर जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है, क्लिक दिस नॉट अप्लीकेबल, सेव एंड नेक्स्ट. एक चीज, कोई भी डेटा आप इस पोर्टल पे सबमिट करते हैं, चेकर से मस्ट बी गेट अप्रूव्ड. चेकर से उसको अप्रूव करना पड़ता है, यानी कि दूसरे एडमिन से. अगर मैं चेकर की बात करूं तो 2 एडमिन है, तो दूसरे एडमिन से आपको अप्रूव करना पड़ेगा. एक बार आपने जीएसटी डिटेल डाल दी, देन अगेन गो टू वॉलेट डिटेल. वॉलेट मतलब ये फ्री में नहीं है, ये पोर्टल फ्री में नहीं है. आरबीआई का सरसाई का जो पोर्टल है वो फ्री में नहीं है, यानी कि उसका पैसा लगता है. तो वहां पे वॉलेट के थ्रू होता है, ऐसा ऑनलाइन है नहीं. आपको सबसे पहले वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा.
तो आपने वॉलेट में आई है, वॉलेट में आप पैसा डालिए, 1000, 2000, 5000, ये है उसके चार्जेस। अगर मैं कोई नया CKYC रिकॉर्ड अपलोड करता हूं तो उसका 80 पैसा प्लस टैक्स। अगर मैं कोई डाउनलोड करता हूं 1 रुपया 10 पैसा प्लस टैक्सेस। अपडेट करता हूं तो 1 रुपये 15 पैसे प्लस टैक्सेस। यहां पे एक चीज गौर रखिए, टेस्ट बेड पे कोई ऐसा नहीं, ये जस्ट एक फ्री आपको नॉलेज है, आपको फैमिलियर, आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है टेस्ट बेड। यहां पे कुछ पैसे नहीं लगेंगे आपके, ये जस्ट आप कोई भी रैंडम फिगर डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यही लाइव पे यूज करेंगे तो हर एक चीज का एक पैसा लगता है। सर्च फ्री है, लाइव पे अगर आप कोई डेटा सर्च करते हो कस्टमर का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे या नया रिकॉर्ड अपलोड करने की कोशिश करोगे या अपडेट करोगे, उसका पैसे लगते हैं। वॉलेट डिटेल करने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है यूजर क्रिएशन। अगर आपको यूजर क्रिएट करना है, सपोज 2 एडमिन है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरे ब्रांच लेवल पे वो काम हो, मैं सेंट्रलाइज नहीं रखता हूं, या मैं चाहता हूं CKYC 2-4 टीम मेरी कर रही है, तो उन सबके नाम पे आपको क्रिएट करना है, तो आप सब यूजर बना सकते हो। दैट इज कॉल्ड द रीजनल एडमिन। एक जो 2 एडमिन होते हैं मेन एडमिन होते हैं, उसके बाद के जितने लोग होते हैं वो होते हैं रीजनल एडमिन। आप रीजनल एडमिन बना दिए, एंड उसके बाद रीजन क्रिएट करना पड़ता है। आप रीजनल एडमिन बनाइए या मत बनाइए, बट सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको रीजन क्रिएट करना पड़ता है। मतलब GST डिटेल, वॉलेट डिटेल, उसके बाद रीजन मास्टर। रीजन मास्टर आप कोई भी डाले, अगर आप मुंबई के हो तो जो भी आपको अपने कंपनी में HO डालना है, मुंबई डालना है, कलकत्ता के हो कलकत्ता, राजस्थान के हो तो राजस्थान, जो भी आपको लगता है नाम, इज अ ओनली डिपेंड अप टू यू। इसका कहीं कोई रिकॉर्ड अपलोड नहीं होता, ये आपके लिए है ट्रैकिंग सिस्टम। ब्रांच, अगेन अगर आप चाहते हो कि मेरा CKYC मैं पर ब्रांच के थ्रू से मैपिंग करूं, ये आपको डेटा पुल करने में MIS में हेल्प लगता है। यू कैन क्रिएट द ब्रांच, या आप चाहते हो कि मेरा कौन से ब्रांच का मुझे ये देखना है कि इस ब्रांच कितनी CKYC हुई है नहीं हुई है, उस सब के लिए अगेन ये इंटरनल है। एक बार आपने ये सब कर लिया, मतलब GST कर लिया, आपने वॉलेट डिटेल कर लिया, रीजन मास्टर डाल दिए, आपने ब्रांचेस क्रिएट कर दिया, व्हाट नेक्स्ट? कम टू द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, दैट इज KYC। बहुत लोगों का ना कि मैं तो खाली लेंडिंग करता हूं, SME लेंडिंग है, वो कॉर्पोरेट्स को है, तो मैं वो इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल KYC की RBI बात ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑलवेज RBI वर्सेज जो द कस्टमर, कस्टमर कैन बी इंडिविजुअल, कस्टमर कैन बी नॉन इंडिविजुअल। तो लीगल एंटिटी जिसको हम CKYC लैंग्वेज में बोलते हैं, अगर वो लीगल एंटिटी है, आइदर वो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, LLP, व्हाटएवर, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल, सारे लीगल एंटिटी में आते हैं और उनका भी होता है। जो पहला ऑप्शन है सर्च एंड डाउनलोड KYC, मैंने पहले बताया सर्च एंड डाउनलोड इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहां पे क्लिक करिए, आप वहां पे डिटेल डालिए, सामने वो डिटेल पूछता है, अगर CKYC नंबर है CKYC नंबर डालिए, सर्च करिए, मैच करिए कि मेरा ही डेटा है, आप डाउनलोड करिए। नेक्स्ट इज न्यू KYC इंडिविजुअल। अगर मुझे किसी का नया KYC अपलोड करना है तो वो हम उस पे जाते हैं। देन KYC अथोराइजेशन, मैंने अपलोड कर दिया, जो दूसरा चेकर होता है उसको अप्रूव करना पड़ेगा, उसको अप्रूव करते हैं। सपोज यहां पे जो अपडेट KYC वाला पार्ट है, मेरा ऑलरेडी KYC है, जैसे मैंने पहले ही बोला, इफ आई ऑलरेडी हैव माय कस्टमर, इफ द सम financial institution that already created my CKYC number, but I want to update my address, so I cannot do the NBFC is a bank that another financial institution will only do. Now this is not related to customer, cannot do, so they have to choose the option update KYC. When they click the update the KYC, they ask you the 14-digit key number. On that they ask me what you need to update, mobile number, email ID, address, marital status or whatever. Probable match, suppose there is lot two person or the similar name, तो that is come the probable match। मतलब ये पोर्टल क्या बोल रहा है, इस नाम के ऑलरेडी एक पर्सन अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करिए रिकॉर्ड, मैच करिए कि आपका जो मिस्टर ए है और जो CKYC मिस्टर ए है दोनों सेम है या दोनों अलग है, एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन। वेब बेस्ड फाइलिंग रिकॉर्ड, मतलब जब हम बल्क में अपलोड करते हैं उसमें, तो अब सामने सामने फ्रंट में दिखता है प्रॉबल मैच, परफेक्ट मैच, वो सारी चीजों के लिए ये है। बल्क अपलोड, ऑफ कोर्स देयर इज 2 टाइप ऑफ फाइलिंग होती है CKYC में। वन, एक होती है स्क्रीन बेस्ड, मतलब आप एक एक रिकॉर्ड अपलोड करिए। दूसरी होती है बल्क अपलोड, मतलब एक साथ 25, 50, 100, 1000, 2000 डेटा आप बनाइए,
और एक ही साथ जीप फोल्डर में करके आप उसको अपलोड करें, जिसके लिए एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर लगता है, या आपकी जो आईटी टीम है यहाँ पे उन्होंने बताया है हेल्प किट में कि बल्क रिकॉर्ड कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो तो एक साथ आप 25, 50, 100 रिकॉर्ड एक साथ ही अपलोड कर देते हो। अदरवाइज अगर आपको उसको भी सिंपल करना है, आपका मंथली ऑनबोर्डिंग ज़्यादा नहीं है, तो आप एक एक रिकॉर्ड भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट एक चीज अभी जैसे मुझे याद आ रही है, इसका ड्यू डेट क्या है। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन के खिलाफ, मास्टर केवाईसी और द सरसाई के साथ विद इन द 10 डेज ऑफ योर डिसबर्समेंट और अकाउंट ओपन के रिलेशनशिप की बात कस्टमर जैसे होता है। तो अगर मैं एनबीएफसी हाउसिंग की बात करूं तो मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट कब कब होता है कस्टमर के साथ, जब मैं डिसबर्स करता हूं। सैंक्शन तो एक प्रोसेस है, लेकिन जब मैं डिसबर्स किया हूं उससे 10 दिन से, फॉर एग्जाम्पल आज मैं 12 तारीख को डिसबर्स कर दिया तो 22 तक मुझे CKYC अपलोड करना चाहिए। यह है ड्यू डेट, एक्चुअल ड्यू डेट। बट मेनी एनबीएफसी, जो छोटी एनबीएफसी है, उनके पास इतना होता नहीं कि वो हर बार ऐसे करता है। तो एक मार्केट प्रैक्टिस से बताना से कि यही सही है। अगर आप मार्केट प्रैक्टिस से आप जाते हो तो आप ये कह सकते हो कि मंथ एंडिंग के विद इन 10 डेज आप सारे CKYC आप जिस पर्टिकुलर मंथ में आप सपोज आप जनवरी खत्म होता है तो बाय 10th ऑफ फेब आप सारे CKYC रिकॉर्ड अपलोड करिए, अपडेट करिए, जो भी आपको लगता है पोर्टल में वो करिए। जस्ट मैंने क्लिक किया हाउ टू क्रिएट। ये जब आप हाउ टू क्रिएट, अगर मैं बोलूं आप इस वाले पे ऑप्शन पे कर करते हो क्रिएट न्यू पे, न्यू KYC इंडिविजुअल पे अगर आप क्लिक करते हो तो इस तरह के कुछ पेज ओपन हो जाता है। ये मैं डिटेल किसी और दिन किसी और पोर्टल में मैं आपको बता दूंगा कि इसका हर एक चीज का मीनिंग क्या होता है अनदर वीडियोज में। KYC ऑथराइजेशन, अगेन आप जाइए चेकर के लॉगिन पे, आप चेकर के लॉगिन से आईडी करिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑथराइजेशन, जैसे ही आप अपलोड करोगे आपको लिंक आएगा, वहां पे हो जाएगा। मेन चीज आपने ये सारी चीज कर लिया, सपोज आपने ये सारी चीज कुछ कर लिया, अपलोड किया, अपडेट किया, इसका मुझे पता कैसे MIS मुझे ट्रैक कैसे करना है। तो आपको ट्रैक करने के लिए आपको लॉग्स एंड रिपोर्ट में जाना है। लॉग्स एंड रिपोर्ट में आप क्लिक MIS पे आप क्लिक करिए। जैसे आप MIS पे क्लिक करेंगे इस तरह के एक टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें बहुत सारे न्यू KYC, अपडेट KYC, टोटल, मतलब जो आप नया बनाए हो वो आपको यहाँ दिखेगा, जो अपडेट किए हो वो वहाँ, और टोटल। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, अगर आप अपलोड किए हो ये फर्स्ट ऑप्शन अपलोड का, ड्राफ्ट में सेव करके पेंडिंग फॉर चेकर अप्रूवल, होल्ड किया है चेकर ने, मतलब चेकर को कुछ कंफ्यूजन लगा उसने होल्ड किया है, प्रोबेबल मैच रिकॉन के लिए पेंडिंग है, और ये सब भी हो गया अंडर प्रोसेस ऑफ CKYC। अगर आपने अपलोड किया, चेकर ने अप्रूव कर दिया है, बट वो प्रोसेस में है CKYC में, वो मिनिमम 3 से 7 दिन लगता है। फिर उसके बाद रिजेक्ट, कभी कभी आपने जो डेटा अपलोड किया वो रिजेक्ट हो गया, मतलब आपने जो KYC अपलोड की प्रूफ, PDF का प्रूफ, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, नरेगा हो, वोटर ID हो, और कई सारे डॉक्यूमेंट, अगर इसमें से कोई ब्लर हुआ है, कोई धुंधला दिख रहा है, या रिकॉर्ड अच्छे से नहीं है, तो रिजेक्ट भी होता है। डाउनलोड कंफर्म है, जैसे मैंने बोला मिस्टर A है, बट मिस्टर A के नाम से ऑलरेडी रिकॉर्ड CKYC के पास है, तो कंफर्म मैच है, उसका मैं बता दिया। और लास्ट में अगर सब कुछ सही है, प्लेन वैलिना के जैसा है, एकदम सीधा सिंपल, CKYC नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हाइपर लिंक आएगा, उस पर क्लिक करिए, एक्सेल सीट डाउनलोड हो जाती है जिसमें सारा ट्रैकिंग रहता है। एंड नाउ द लास्ट, सपोज आपने ये सारी एक्टिविटी कर दी, मतलब कि आपने 1 by 1 जितना मैंने यहाँ पे मार्किंग किया है, ये सब टेस्ट बेड की चेकलिस्ट का ऑप्शन है। आपने सर्च डाउनलोड किया, न्यू रिकॉर्ड कर लिया, KYC ऑथराइजेशन कर लिया, अपडेट कर लिया, प्रॉब्लम मैच, वेब रिकॉन, ये सारे स्टेप आपने कर लिया। उसके बाद लास्ट में आपको आता है एडमिनिस्ट्रेशन टेस्टिंग सबमिशन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे जवाब है। आपको सब पे यस 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 करना है, और अगर कोई नो है तो आपको वहाँ पे उसका रीजन लिखना है कि क्यों गलत है। तो आप एंटिटी रजिस्ट्रेशन, KYC अपलोड, सर्च एंड डाउनलोड, अपडेट, प्रॉब्लम, इस सब में यस नो इस तरह का ऑप्शन पूछा जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए। ये सब करने के बाद यस हुआ तो कोई बात नहीं, नो हुआ, अगर आपने नो लिखा है उसके सामने वहाँ पे रीजन डालिए। ये सब डालने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक लिंक आ जाएगा, योर KYC टेस्ट हैज बीन सबमिटेड, प्लीज वेट। तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपका जो नोडल ऑफिसर होगा, जिसका आपने ईमेल आईडी डाला होगा जब आप एप्लीकेशन कर रहे थे, या जो आपका एडमिन 1 होगा, उसके मेल पे एक ईमेल आएगा, वो ईमेल का प्रिंट आउट लेना है,
सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपके एप्लीकेशन के साथ, सब पे साइन करना है और उसका हार्ड कॉपी आपको दिल्ली CKYC ऑफिस, जो सरसाई की ऑफिस है दिल्ली में, वहां पे उसको मेल कर देना है। इट जनरली टेक 15 to 30 डेज के बाद आपको ईमेल आ जाएगा और उसमें आपको मेन लाइव जो पोर्टल है CKYC इंडिया, उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है। और उसके बाद जैसे आपने अभी यहाँ पे आपने देखा फ्लो कि कैसे कैसे होता है, सेम फ्लो आपको वहां पे अपने कस्टमर करना है और अब यू स्टार्ट कंप्लाई विद CKYC रजिस्ट्री। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए CKYC से रिलेटेड, CKYC कंप्लायंसेस से रिलेटेड, आप ईमेल भेजिए, आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। वी हमारी टीम, अविन कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस की टीम या अविन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल की टीम आपको अप्रोच करेगी एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज। टिल देन, थैंक यू सो मच। नमस्कार।